So till date we have discussed about force method. It involves consistent deformation method. Second one was matrix approach, that is flexibility approach. We have discussed. We have solved many numericals also. After that, we have discussed another approach that is called as displacement approach. We have discussed the basic concept regarding fixed moment, regarding moment to generate unit rotation at a joint at different conditions. We have discussed in a very explained manner. After that, means in our yesterday's class, we have discussed the basic concept involved in writing the slope deflection equations. Yesterday we discussed in a very detail. After that discussion, we had also understand the applicability of matrix approach, that is flexibility method. Yesterday I have given some comparison between flexibility method and stiffness method. Comparison basis पे मैंने दिया. It was not in a exactly full detail. The method was not discussed in full detail actually. Comparison मैंने बताया. And that comparison अभी मैं एक दो क्वेश्चन पहले मैं वैसे ही करूँगा, फिर मैं उसको ड्राइव भी कर दूँगा. Clear? So today I will discuss, I will analyze a beam having 3 degree of indeterminance, having 3 degree of kinematic indeterminance. Why I am taking 3 degree of indeterminacy? Because through this question I will try my best to explain each and everything. इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करूँगा that will be for revision only. सारी चीज़ मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा. सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें, whatever is the required thing, that will be explained through one question only. Clear? So I am going to take this question. This one question. Moment of inertia I, 2I and I, and the distances 5 meters. This segment carries a UDL of intensity 2 kilonewton per meter. And another segment has a concentrated load of 10 kilonewton at a distance of 3 meter and 2 meter. And the last segment of this continuous beam has a UDL of intensity 3 kilonewton per meter. And this question was discussed, this question was analyzed using which one method? Force method. So I am taking same question using force method and displacement method to explain each and everything, to explain each and every differences. Same problem को मैं ले रहा हूँ. Same problem. Result आपको मालूम ही है. Its result you know very well. What are the reactions? What is the bending moment diagram? What is shear force diagram? You know very well. Results you know very well. अब डिस्प्लेसमेंट से कैसे हमें करना है? यूजिंग फोर्स, यूजिंग ये कौन सा मेथड है?
स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैसे करना है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं इसी क्वेश्चन के थ्रू। तो उसको आप पिक करो, तो उसको आप समझो, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव सेम क्वेश्चन लेने का ये है, डिफरेंसेज आप सीधे देखो, ठीक है। फाइनल हमारा क्या होता है, एनालाइज करना है, इसका मीन फाइनल ऑब्जेक्टिव इज टू प्लॉट द क्या बीएमडी एसएफडी टू फाइंड द ऑल फोर्सेज मीन रिएक्शन, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। बट ये ऑब्जेक्टिव हम डिस्प्लेसमेंट से कैसे फुलफिल करें, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज सेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? So let us take this point as A, this as point B, this as point C, this as point D, this is point as D. Yes, this is also 5 meters. Let me check. Yes, it is also 5 meters. So the first difference is in spite of taking static indeterminacy, we will consider which one? Kinematic indeterminacy. यहीं से स्टार्ट किया था मैंने, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी पहले मैंने चेक करवाई थी। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, वी विल कंसिडर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, पहला डिफरेंस, ओके। और ये काइनेमेटिक डिटरमिनेंसी आपको मालूम बताया था मैंने, दो तरीके की होती है। कौन सी? कंसिडरिंग इनएक्सटेंसिबिलिटी है ना, और एक्सटेंसिबिलिटी। तो हम लोग जब क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ, इसका जो चेंज ऑफ लेंथ जो है ना, इसको हम लेते नहीं है जब तक हमसे कहा ना जाए। तो हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी लेंगे कंसिडरिंग इनएक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मेंबर, अनटिल अनलेस आपसे कहा ना जाए आप ये लेंगे। लेकिन अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आपको क्या लेना है? एक्सटेंसिबिलिटी वाला। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, डाउट होता है यहाँ पे। क्लियर? अंतर क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस हो जाएगा इससे, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर? 3 है, 3 माइनस हो जाएगा बस, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 4, सो इट इज 4 into 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रिस्ट्रेंट कितना? 3 कितना? 2 प्लस 2 कितना आया? 12 माइनस ये -3 कितना हुआ? 0। It comes to be 1 2 3 4, okay, so equals to 3। अच्छा, इसमें तो ऑलरेडी हमने पहले ही हटा दिया ना, यहाँ पे हिंज लगाया, 2 कर दिया, समझ रहे हैं ना क्यों माइनस नहीं हुआ? लेट मी डिफाइन, ये जो है यहाँ पे ये इस तरीके के लिए इनएक्सटेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, समझे ना। हिंज लगा दिया तो हमने पहले ही रेस्ट्रेंट कर दिया, चेंज पहले ही हमने रोक दिया, 2 बार थोड़ी ना माइनस होगा। बात समझ में आई नहीं? क्यों 0 आ रहा था? 2 बार थोड़ी ना माइनस करोगे। अब यहाँ पे लगाओगे, सो 3 + 1 + 1 + 1, यहाँ पर भी +1 -3 इक्वल्स टू, क्लियर ना। इनएक्सटेंसिबिलिटी का मतलब तभी तो होगा ना जब यहाँ पे क्या हो? रोलर सपोर्ट हो, क्लियर ना। हिंज हमने पहले ही लगा दिया था तो 2 बार माइनस थोड़ी हो सकता था, क्लियर? ओके, सो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी इज 3। व्हाट आर दोज? दिस वन इज थीटा B, this is theta C, and that one is, what are those? यहाँ पे लिख लें, these are theta B,
theta C and theta D. We have three indeterminacy and these are this. Clear? So this is the first step. Okay. And after this जो मैंने आपको कल बताया है वो सारे डायग्राम यहां पे बनाऊंगा. दो तरीके आपको मैंने बताए थे. You can write the slope deflection equations with the help of expression and you can also write with the help of diagrams. तो मैं diagrams आपको मैं बोला था कि I will use diagram. Okay? So मैं देखो आप लोग सबसे फर्स्ट डायग्राम क्या था? फिक्स्ड एंड मोमेंट का था क्या? फिक्स्ड एंड मोमेंट. ओके. सो क्या करेंगे हम? वी विल क्या करना है हमें? वी हैव टू, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? जो थीटा बी है इसको क्या करना है? खत्म करना है. यहां की डिग्री ऑफ फ्रीडम को जीरो करना है. यहां की भी वी हैव टू रेस्ट्रेन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम. वी हैव टू रेस्ट्रेन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट विल पॉसिबल ओनली व्हेन. क्या करें हम यहां पे? ऐसा कुछ करें क्या? तभी हो सकता है. और ये तो पहले से था, यहां तो ये पहले से फिक्स था. इन द सेम वे अप्लाई फिक्स सपोर्ट हियर. और यहां पर भी ऐसा क्या? नाउ दिस इंटायर, दिस वन इज स्पान इज AB, दिस वन इज स्पान इज कौन सा? BC, दिस वन इज स्पान इज CD. And all degrees of freedom at every joint, these are 0. Okay? लोडिंग जो पहले गिवन है वही लोडिंग यहां पर भी लगाओ. So it is UDL, no problem. With same magnitude 2 kilonewton per meter. जहां पे पॉइंट लोड वहीं पे पॉइंट लोड लगा दो. ओके. जहां पे UDL सेम ऐसे. क्लियर? अब क्या करना है? क्या करना है? मोमेंट निकालने एंड पे. और आपको मालूम है फिक्स्ड मोमेंट किस में रिप्रेजेंट होते हैं? क्लॉकवाइज. सो वैल्यू ऑफ क्लॉकवाइज यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करूं? ऐसे या ऐसे? नीचे को, नीचे को बता ही चुका हूं. दिस वैल्यू विल बी रिटन एज क्या? MFAB. MFAB. ओके. तो यहां पे केवल हम वैल्यू लिखेंगे. ओके. यहां पे कैलकुलेट कर लो. ऐसे ही आप भी बनाइए, जगह तो छोड़ दीजिएगा. कितने फिगर बनेंगे? एक ये हो गया और 3 फिगर थीटा B = 1 के लिए, थीटा C = 1 के लिए और थीटा D के लिए. तो पहले मैं जगह पूरा फुल पेज छोड़ देना अगले पेज से, जैसे मैं इधर कर रहा हूं ऐसे ही आप कर दी. MFAB. MFAB कर क्या रहा हूं? दीज आर द बेसिकली फिक्स्ड इन मोमेंट. फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. फिक्स्ड इन मोमेंट. MFAB क्या होगा? इसकी वैल्यू विच वन इज दिस? UDL. और UDL के लिए मैं आपको डिराइव भी करा चुका हूं. WL²/12. You know value of W 2. You know the value of L 5. 12 आपको मालूम ही है. So you can have this value as minus कितना? How much? It is minus कितना? 4.17. 4.17. सिमिलरली तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या? -4.17. I will write here as 4.17. I will write here as -4.17. क्लियर? यहां के लिए लिखो यहां पे राइट MFBA. MFBA क्या होती है? प्लस होती है क्या? सो अभी यहां पे लिख लो फॉर्मूला प्लस WL²/2. तो अपने आप ये कितना हो गया? 4.17. 4.17 प्लस साइन. व्हाट इट्स मीन? इट इज क्लॉकवाइज. इट इज क्लॉकवाइज. सो ये यहां पे लिखा जाए 4.17. किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होनी चाहिए. दिस वर्क, सेम वर्क विल बी
सेम वर्क विल बी डन फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट आल्सो। कर सकते हैं? ओके, कर सकते हैं, करें। ये हो गया ए बी के लिए, दिस इज फॉर ए बी। सिमिलरली फॉर बी सी, बी सी के लिए क्या लिखें? एम एफ बी सी, एम एफ बी सी। कंसंट्रेटेड लोड है, आपको बता ही चुके हैं कैसे होगा। W इंटू ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस वन डिस्टेंस डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ओके, इफ दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज B, so this value is minus W B square A by L square, you know very well, and tell me that value. Capital W is 10, B is how much? 2, A is 3, L is 5. Put the value and it is 4.8 with minus sign, 4.8, right? Similarly, find the value of M F, which one? C B. अच्छा, जो वैल्यू निकलती जाए उसको लिखते भी जाओ। कहाँ पे, कैसे हम लिखें? ये कहाँ पे? दिस इज एट पॉइंट बी पे, ओके। और बी पे कैसा है? माइनस का है ना, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें प्रेजेंट करना है यहाँ पे क्लॉकवाइज में ही। सो बी पॉइंट इज हियर और ये इसके लिए है, तो मैं कैसा साइन बनाऊं? ऐसा या ऐसा? दिस वन, और वैल्यू क्या लिखूं? माइनस 4.8, क्या? माइनस 4.8, क्लियर? माइनस 4.8। सिमिलरली we will calculate fixed moment at this point also. We will calculate the fixed moment for this point also. No problem, we can calculate MFCB. It will be plus WA square B by L square, and the value is how much? 10.2, 7.2 प्लस का 7.2। आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। ऐसा क्या? ऐसा क्या? करेक्ट, नीचे लिख दें 7.2। सिमिलरली लास्ट का बचा हुआ है उसका भी कर लें। ओके, सो एम एफ क्या लिखना चाहिए मुझे? सी डी, दैट इज बार बार डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12 लिखने की जरूरत है क्या? पुट डायरेक्ट वैल्यू कितना बता रहे हैं आप? 6.25। सो clockwise is this minus 6.25 and this value is MF DC, तो ये प्लस हो जाएगी क्या? 6.25, यूडीएल में तो बराबर ही है, so 6.25। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है फर्स्ट स्टेप? टू फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप to find the fixed end moment. To find the fixed end moment. Is it clear to everybody? There should not be any doubts. है किसी को? है तो बताए, पूछे, मैं एक्सप्लेन करूं। There should not be any confusion or doubt. Everybody clear? Okay. So the next step is, बताएं मुझे, आप खुद बताएं। We have to give rotation, unit rotation 1 by 1. Means first of all we will take this point B, और B पे क्या है अभी? ये हिंज है, ये इट इज फिक्स्ड। इसको क्या करेंगे? रोटेशन देना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, आज़ादी देनी होगी, फ्रीडम। और फ्रीडम कैसे आएगी? जब यहाँ पे क्या प्रोवाइड करें? फिक्स की जगह पे हिंज प्रोवाइड करें। क्लियर? ये फ्रीडम कब मिलेगी? जब हम यहां पे करें हिंज प्रोवाइड करें, हिंज प्रोवाइड करें। ओके, तो हिंज प्रोवाइड करेंगे तो क्या फिगर हमारे पास आएगा? ये आएगा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ये चीज क्या?
किसने पूछा? ऐसा क्या? हाउ वी कैन प्रोवाइड थीटा, किसके लिए ये थीटा बी इक्वल टू 1, थीटा बी इक्वल टू 1 हमें प्रोवाइड करना है। यहां पे कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रोवाइड द हिंज एट पॉइंट बी। बाकी सब में कुछ नहीं, जो जैसा है वैसा ही, बाकी सब में जो जैसा है वैसा ही। यहां पे फिक्स है, नो प्रॉब्लम, इट विल रिमेन सेम, यहां पे रिमेन सेम, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ओके, फिर हमें और भी कुछ करना है। क्या करना है? थीटा सी इक्वल टू 1, थीटा सी इक्वल टू 1, और हमें करना होगा थीटा डी इक्वल टू 1 भी, थीटा डी इक्वल टू 1 फॉर थीटा सी इक्वल टू 1। क्या करना होगा? यहां पे हिंज लगाना होगा, एंड अदर रिमेनिंग थिंग विल बी सेम, अदर रिमेनिंग थिंग विल बी सेम। तो क्या फिगर बन के आएगी वो बना लेते हैं पहले। सो our figure structure will have, our structure will have this type of thing। क्या? our structure will have this type of thing। होगा क्या? ऐसा ही होगा कुछ। we have provided, hinge is provided only at point C and other joints are restrained to rotate, other joints are restrained to rotate। okay, what about कहूँगा थीटा डी? वहां पे क्या करना होगा? केवल डी पे अप्लाई हिंज एट डी ओनली। सो यहां पे हिंज और यहां पे क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड, और यहां पर भी फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड। ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं? पहले बताओ। तो दिस इज द बेसिक। इसके कोई आगे का काम तो बहुत आसान है। द नेक्स्ट वर्क इज नॉट सो डिफिकल्ट, द नेक्स्ट वर्क इज नॉट सो डिफिकल्ट। द मेन डिफिकल्टी इज ओनली दिस, द मेन डिफिकल्टी इज ओनली दिस। दैट कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या कर रहे हैं? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इन दिस स्टेप क्या किया हमने? क्या किया हमने? डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर दी। ऑफ कोर्स यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो सकती थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली जीरो कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, तो हॉरिजॉन्टल अपने आप जीरो। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, इसमें हमने सब कुछ खत्म कर दिया, इसमें भी, इसमें भी। अब क्या कर रहे हैं? धीरे 1 बाई 1 सबको हम क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं, एक्चुअल कंडीशन में ला रहे हैं। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हिंज प्रोवाइड करके, बाकी को सबको क्या रखा हमने? सेम रखा। इस वाले में थीटा बी इक्वल टू 1 देना है, थीटा सी इक्वल टू 1 देना है, तो यहां पे हिंज किया, बाकी सब में सेम। यहां पे क्या करना है? थीटा डी इक्वल टू 1, तो केवल इसमें, बाकी सब में सेम। वेरी क्लियर। ओके, नाउ एज पर अवर लास्ट डिस्कशन, लास्ट क्लास, सभी ध्यान से सुनना है बेटा जो चीज मैं बताने वाला हूं। एज पर अवर लास्ट क्लास वी हैव टू प्रोवाइड यूनिट रोटेशन एट पॉइंट, कहां पे? बी पे। और मैं आपको बताया था मोमेंट एज वेल एज रोटेशन आर टेकन एज पॉजिटिव फॉर ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन at point B, clockwise direction of rotation at point C, and clockwise direction of rotation of D of each having rotation magnitude equals to 1. So this will कैसे? ऐसे क्या? टेंजेंट अगर B पॉइंट पे ड्रा करें तो कुछ ऐसा क्या? ये थीटा B इक्वल्स टू 1 एंड दिस वैल्यू थीटा B इक्वल्स टू 1। ये क्लॉकवाइज है क्या? इज इट क्लॉकवाइज? ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए बेटा, इसमें किसी प्रकार का कोई रटने वाली चीज नहीं। यही तो क्लॉकवाइज रोटेशन है।
अब डिफ्लेक्टेड शेप अभी देख लेंगे, बना लेंगे, वो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या होगा डिफ्लेक्टेड शेप देख लीजिए जाएगा बाद में, वो बात की बात है। पहले ये तो क्लियर हो कि किस डायरेक्शन में हमें रोटेशन लगाना है, दैट शुड बी क्लियर, किस डायरेक्शन में रोटेशन लगाना है। ओके, मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी 3I/L होगा, 4EI/L होगा, दैट इज नेक्स्ट थिंग, दैट इज नेक्स्ट थिंग। क्लियर? इन द सेम वे व्हाट अबाउट फॉर θc = 1, क्या करना होगा? यहां पे हमें कुछ ऐसा करना है क्या, ऐसा, दिस वन रोटेशन वैल्यू, दिस वन रोटेशन वैल्यू, क्या करना होगा? दैट इज θc = 1 एंड दिस इज θc = 1। ऐसा क्या, ऐसा क्या? क्लियर बच्चों? यहां पे समझ गए होंगे आप क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये है। सो कैसा, ऐसा या ऐसा, समझ गए होंगे, है ना? दिस वैल्यू शुड बी θd = 1। टेंजेंट मैंने ड्रा किया है, डिफ्लेक्टेड शेप अभी ड्रा हो जाएगा। यहां पे प्लस, जहां पर भी प्लस है, रोटेशन में है तो क्लॉकवाइज रोटेशन, मोमेंट में है प्लस है, इट मींस की क्लॉकवाइज मोमेंट, निगेटिव वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, क्या क्या हमने किया है? सबसे पहले इसको फिक्स किया, फिर ये फिगर बनाए, इसके बाद हमने यूनिट रोटेशन दिया। अब ये यूनिट रोटेशन दिया, जहां जहां पे हमने, कल मैंने आपको बताया था कि द पॉइंट्स where we provide the unit rotation means where we provide the moment, that joints are called as near or far, near end means near end is this, far end is this one and this one, यही तो हुआ। far ends will be, it will have two far ends, this one as well as this one। what about for this? This will be treated as near end and the far end comes up, this one and this one। okay, for this near end is this and far end is only one। clear to everybody? clear to everybody? अब नियर फार एंड भी पता चल गया, अब मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट लिखने में कितना टाइम लगेगा, है ना? वो भी आगे भी हो जाएगा। कैसे मोमेंट की वैल्यू लिखनी है देख लो, इस पार्ट का पहले करें फिर इस पार्ट का करेंगे। क्लियर? 1 by 1। मोमेंट इधर रोटेशन इन दिस डायरेक्शन, सो मोमेंट विल प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन। ये क्या है, ये कंडीशन है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसे, ये है क्या? डिफ्लेक्टेड शेप इसका क्या होगा, दिस वन विल बी डिफ्लेक्टेड शेप, और इसके लिए ये क्या, डिफ्लेक्टेड शेप। ओके, डिफ्लेक्टेड शेप क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको, क्या कितना था ये बताया ही मैंने आपको। तो राइट इट एज व्हाट, 4EI/L, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। L की वैल्यू आपको मालूम ही है, तो रख सकते हो क्या डायरेक्ट, कितने, 4EI/5, यहीं पे पुट करो, क्योंकि कैलकुलेशन में बाद में वहां पे करना होगा, LL क्या करना है यहीं पे करो, 4EI/5। I देख लेना, I है या 2I है, ध्यान रखना। जैसा अब इसे इसके लिए ना, इसके लिए तो I है, लेकिन जब अगर इसके लिए करोगे तो I नहीं करोगे, क्या करोगे, 2I। ठीक है? तो इसके लिए मोमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, ओके, एंड द वैल्यू विल बी 8EI/5। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? आप लोग गलती क्या करते हो मैं बताऊं आपको, आप जल्दबाजी में 4EI/5, इधर भी 4EI/5, आप भूल जाते हो कि यहां पे I चेंज है, भूल जाते हो आप जल्दबाजी में। आपको नहीं भूलना है, फार्मूला याद रखते हो तो भूल जाते हो हमेशा। आप अगर ये चीज करोगे तो गलती होने की चांसेस यहाँ पे क्या है, कम है। आपको दिख रहा है, फॉर दिस साइड इट इज I ओनली एंड फॉर दिस सेगमेंट इट इज 2I, तो चांस है कि आप कम गलती करें। क्लियर? तो वी हैव अप्लाइड दिस
मच ऑफ मोमेंट एट नियर एंड. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैरी फॉरवर्ड. वो आपको मालूम ही है, हाफ इन सेम डायरेक्शन, वो आपको पता ही है. तो ये कितना हो जाएगा? 2ei/5. और इसका कितना हो जाएगा? बस क्लॉकवाइज में है तो दिस डायरेक्शन विल बी दिस एंड द वैल्यू विल बी 2ei/5 and this one is 4ei by how much? 5. Okay, complete. ये वाला फिगर कंप्लीट एंड मोमेंट कंप्लीट. यही काम हमें इन दोनों के लिए करना है. ये काम कठिन तो नहीं है? कठिन है? इट्स वेरी सिंपल. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और वो मैं करवा चुका हूं. ओके, आफ्टर दैट इट इज वेरी सिंपल. क्लियर? इसमें अपने आप करोगे क्या? जरा करो अपनी कॉपी में, फिर मैं यहां पे चेक करा दूंगा. डू बाय योर ओन फॉर दिस. क्या करना है आपको? सबसे पहले यहां पे नियर एंड पे क्या करना है? अप्लाई द मोमेंट एंड देन कैरी फॉरवर्ड. करो पहले, सभी लोग करो. हो गया बच्चों? सो दिस वन डायरेक्शन 8ei/5 and okay, carry forward 4ei/5 दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज. और इधर भाई कितना भी हुआ? 2ei/5. ओके, वेरी सिंपल. सिमिलरली यहां पे कितना? यहां पे 4ei/5 और ये कितना फॉरवर्ड हुआ? 2ei/5. क्लियर? these are 4 step diagram. After having this concept, now you are in position to write the equation. Okay? And किसके लिए आपको लिखना है? This one will be what? MAB. This one will be M. क्या लिखें उसको? BC. और ये कितना है? MBA. यहाँ पर this is MCB and this value is MCD and this value is MD. These end moment can be written. using ये. इसको फिगर नंबर 1 कर दो. फिगर 1, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ. So next you should write using figure number 1, 2, 3 and 4. Using figure 1, 2, 3 and 4 we can write MAB. लिख सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? This one minus 4.17 plus 2ei/5 multiply by theta b. ओके, प्लस यहां पे कुछ है क्या? नहीं. यहां पे कुछ है क्या? नहीं. बस हो गई. MAB बराबर माइनस 4.17 प्लस 2ei/5 इंटू थीटा. क्लियर? Similarly, you can write MBA. कितना हो जाएगा? 4.17 प्लस 4ei/5 इंटू थीटा बी. यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं. क्लियर?
So this is 4.17 plus 4EI by 5 into theta क्या है b into theta b. Similarly other end moment can also be written. आप जरा लिखो, मैं बाद में वेरीफाई कर दूंगा. Other end moment can also be written. Anything is wrong? कहाँ बेटा? कहाँ, किसमें? MBA में. देखो इधर क्या यहाँ पे बी पे ना, ये 4.17 प्लस 4EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा बी. गिवन इक्वेशन को अभी क्यों ला रहे हो? मैं तो बोला था ना गिवन इक्वेशन से तो मैं करूंगा नहीं, मैं तो इसी डायग्राम से बनाऊंगा. मैं अभी हालांकि मैं चेक करवा दूंगा कि गिवन इक्वेशन से भी वही बन के आएगा. मैं मालूम है आपकी प्रॉब्लम, गिवन इक्वेशन ही यूज करोगे बाद में, लेकिन अभी आप पहले इससे बनाओ. सारे लिख डालो, सारे लिख डालो. आपको लिखना है MAB BA हो ही गया. नेक्स्ट यू हैव टू राइट MBC and after this you have to write MCB, then MCD and then MDC. These values you have to write. These values you have to write. लिख लिया बच्चों? चलो चेक करो, चेक करवाएं. MBC, BC इज ये -4.8 करेक्ट, -4.8 प्लस 8EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा बी करेक्ट. 8EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा बी प्लस 4EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा. बस हो गई, आगे आगे तो जीरो ही है. नेक्स्ट MCB कहाँ है? CB 7.2 प्लस का प्लस 4EI by 5 इंटू थीटा बी प्लस 8EI by थीटा सी. ओके. नेक्स्ट -6.25 प्लस दिस वन है ना 4EI by 5 4EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा सी प्लस 2EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा डी. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ये वाला 6.25 प्लस 2EI by 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा सी प्लस 4EI by 5 multiply by theta d. So these are the equations. These are the equations written using these diagrams. These are the equations. These are the slope deflection equations written with the help of these 4 diagrams. Okay. Now I will explain how these equations can be written with the help of derived equations. With the help of derived equations, जो हमने कल ड्राइव किया था ना, मैंने बताया था कि आप उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. आपको मैं दिखा देता हूं कि these are the same thing. ओके. क्या हमने कल किया था? MIJ इक्वल टू कितना था? MF
आई जे प्लस 2EI बाई एल मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा आई प्लस थीटा जे माइनस 3 डेल बाई एल। हियर डेल बराबर 0, तो हर एक के लिए 0 हो जाएगा। इफ आई एम राइटिंग एम ए बी, और हमें मालूम है थीटा इक्वल टू 0 क्या है यहाँ पे, थीटा इज 0 क्या, थीटा इज 0 बिकॉज इट इज फिक्स। सो इफ आई वांट टू राइट इक्वेशन फॉर एम ए बी, सो क्या फिक्स्ड मोमेंट तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था माइनस 4.17, कापी में लिखा होगा इट इज माइनस 4.17 प्लस 2EI बाई एल, ये आई की जगह पे क्या है ए, तो थीटा ए 0 नो क्या है ये बी हो गया, सो इट विल बी थीटा बी, यही है क्या, चेक इट आउट। और एल कितना है, एल 5 क्या, चेक इट आउट, इज द सेम थिंग, इज द सेम थिंग ना। सिमिलरली राइट इक्वेशन फॉर MBA, राइट इक्वेशन फॉर MBA, लिखो कितना फिक्स्ड मोमेंट कितना था, प्लस था क्या MFBA के लिए, प्लस 4.17 प्लस 2EI बाई 5, बताया था आपको पहले वाले का डबल टाइम्स थीटा बी है ना, 2 थीटा बी और ए मालूम है आपको 0 है, चेक इट आउट, इज इट सेम थिंग, इज इट सेम थिंग, ओके। नेक्स्ट इसके लिए BC के लिए लिखो, ये क्या है मैनुअल है ना, यूजिंग इक्वेशन मैं आपको शो कर रहा हूं कि इट इज द सेम थिंग, दोनों नहीं करना है आपको, चाहे ये करना है चाहे वो करना, ओके। मैं तो हमेशा वही चीज बताऊंगा आपको, इससे ही वो लिखूंगा। नेक्स्ट एम क्या हुआ, नेक्स्ट किसका लिए BC, लिखो MFBC की वैल्यू कितनी आई थी, MFBC की वैल्यू माइनस 4.8 प्लस 2EI बाई 5, 2EI बाई 5 किसका डबल टाइम्स B का, थीटा 2 थीटा B प्लस थीटा C, देखो यही है क्या, यही है क्या, और यही है क्या, हाँ तो I कितना है, 2I है ना, अब देखो सही है, I is not I, 2I, correct, so this equation is verified। other equation MCB कितना हो जाएगा, MFCB 7.2 प्लस 2EI मल्टीप्लाई बाई 2I डिवाइड बाई 5, 2 थीटा C प्लस थीटा B, चेक इट आउट, इज सेम है या नहीं। सिमिलरली कौन सा बचा, MCD कितना, MFCD कितना था माइनस 6.25 प्लस 2EI, I is I ओनली, ओके, डिवाइड बाई हाउ मच 5, किसका डबल टाइम्स थीटा C का, तो देन इट विल बी रिटन एज 2 थीटा C प्लस थीटा D, चेक इट आउट, इज द सेम थिंग है या नहीं, सेम थिंग। नाउ राइट वैल्यू ऑफ M किसकी, DC फिक्स्ड मोमेंट 6.25 प्लस 2EI बाई 5 किसका 2 थीटा D प्लस थीटा C, चेक, सेम थिंग, सेम थिंग। अब आप मुझसे पूछोगे सर जब सेम चीज आ रही है तो काहे को 4 फिगर बनाए, जब सेम चीज आ रही, इसको लिखने के लिए फिगर बनाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, ऐसे लिख लेते आप, तो बस फिक्सिंग मोमेंट कैलकुलेट करते और ये फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अपने में बहुत सिंपल है, अपने में बहुत सिंपल है, तो क्यों इतना सारा काम क्यों किया जाए भाई, कोई यूज नहीं है कोई यूज, राइट, मैट्रिक्स वाला काम आपके उससे नहीं कर पाओगे, मुझे वो भी तो बताना है, मैट्रिक्स वाले के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना, कितने फार्मूले याद करोगे।
कितने फार्मूले याद करोगे? परेशान हो जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे आना ही आना पड़ेगा। क्लियर? और ये भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको ड्रा करने में कितना टाइम लगेगा? पहली बार में आपको थोड़ा सोच सोच के करोगे, जब ये 2-3 बार आप ड्रा कर लोगे देन इट विल टेक लेस टाइम। ओके? और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस वन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना लास्ट तक नहीं पहुंचती है। अभी मैं आपको ओवरहैंगिंग का केस लूंगा, है ना, इधर भी ओवरहैंगिंग उधर भी ओवरहैंगिंग, और अगर तब केवल उस फार्मूले का यूज करोगे ना तो आप कम से कम 1 घंटे लगा दोगे सॉल्व करने में एक ही क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा, लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको इधर आना ही आना होगा, आपको इधर आना ही होगा, नहीं पहुंच पाओगे, 1-1 घंटे लग जाएगा आपका, फिर भी आंसर गलत आएगा, फिर भी आंसर गलत आएगा। ओके? तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी है। बुक्स में आपको यही मिलेगा, आपको ये वाला नहीं मिलेगा। आपको जो बुक मिला हुआ है, आपको क्या कोई भी बुक जो भी मिला हुआ है स्लोप डिफ्लेक्शन में यही मिलेगा। मैट्रिक्स में खोलोगे तो उसमें हो सकता है ये सारी चीजें कुछ मिल जाए, कुछ हद तक, सारा वो भी नहीं। ओके? मैट्रिक्स अप्रोच में, स्टिफनेस मेथड में हो सकता है कि ये सब मिल जाए, लेकिन स्लोप डिफ्लेक्शन में जाओगे तो ये सारा फिगर कोई नहीं बनाता है, कोई नहीं बनाता है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ज्यादा है नहीं। ओके? लेकिन जैसे ही ओवरहैंगिंग का केस आता है, या जैसे इसी वाले केस में, इस फिगर से मैं बहुत इजी कर सकता हूं, मैं इसे अभी नहीं बता रहा हूं, अगले बताऊंगा इसके बाद, बहुत इजी कर सकता हूं। यहां पे ये एक फिगर को मैं गायब भी कर सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। विद द चेंज ऑफ दिस इक्वेशन मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट बनाना पड़ेगा मुझे, बताऊंगा अगली क्लास में, आज नहीं। क्लियर बच्चों? सो इसके बाद का काम क्या बचा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहां पे करना पता चल गया होगा, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी। सो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल बी एट पॉइंट बी and it will be MBA plus MBC equals to 0. That will be equation number 1. Put that value, MBC कौन सी है, MBA कौन सी है, this one और this one, दोनों को ठीक से जोड़ना बेटा, ऊपर नीचे मत, इसको दोनों को मत जोड़ देना, नहीं तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। होता है, ऐसा होता है, जल्दबाजी में होता है, करना इन दोनों को जोड़ना है, जुड़ गया ये या ये जुड़ गया, ऐसा बहुत होता है। बी केयरफुल। ओके? सो दैट इक्वेशन, राइट इक्वेशन नंबर 1 फाइनली जो आपके पास आई। सिमिलरली ये हो गया एट पॉइंट बी, सेकेंड एट पॉइंट कहां पे, सी पे, और तीसरी इक्वेशन बनेगी एट पॉइंट डी। थर्ड इक्वेशन यू विल गेट एट पॉइंट सी। सो एट पॉइंट सी यू विल गेट MCB प्लस MCD, दैट वैल्यू इज 0, and at point C value of MCD equals to 9 at point D. So at point D that value will be MDC equals to 0. This equation number 2, this equation number 2. Solving these three equation, you tell me the values of solving these three values, yeah, from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, tell me the value of theta b, tell me the value of, नहीं मुझे वैल्यू बताओ EI थीटा b की वैल्यू, EI थीटा c की वैल्यू एंड EI थीटा d की वैल्यू। टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस थ्री। Tell me the value of these three. बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज गलत होता है बेटा।
जिसका वैल्यू आ जाए बताता जाए बेटा। आया किसी का वैल्यू? बच्चे कैलकुलेटर वगैरह कहाँ है तुम लोगों का? क्या करते हो बेटा यहाँ पे फिर आके? टाइम पास हो रहा है तुम्हारा, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। वैल्यू ऑफ थीटा बी कितना बता रहे हैं? थीटा बी की वैल्यू ई आई थीटा बी 0.31 ना, गलत, 9। आया किसी का? -0.08, ठीक है, तो 0.8 हो गया। यस, 1.02, 1.02। अगले -8.3, यस 8.32। कितने लोगों की वैल्यूज आई? दीज आर द करेक्ट वैल्यूज। एक लोग का मिल गया है, मैच हुआ है। चेक इट आउट। देख रहा हूं कैलकुलेटर आधे लोगों के पास नहीं है। टाइम बेटा आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कैलकुलेटर ना लाके। कैलकुलेटर लेके आते तो यहीं पे प्रैक्टिस हो जाती, जो घर पे आप एग्जाम के समय पे करोगे। जो एग्जाम के समय पे करोगे वो अभी मैं यहाँ पे क्लास में करवा रहा हूँ और आप उसको करने के लिए तैयार नहीं हो। समय में पूरा समय दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दबाजी भाग भी नहीं रहा हूँ, दौड़ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन तब भी आप नहीं करना चाहते हो, नहीं लाओगे घर से कैलकुलेटर। अपना खुद नुकसान करोगे, मेरा थोड़ी ना कुछ कर रहे हो। आ गए? ओके, सो क्या मैंने बताया? स्टिफनेस मेथड, कैपिटल डी इक्वल्स टू के इनवर्स माइनस पी। ओके, जस्ट फॉर रिवीजन। डी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, सिंपली काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। पी रेस्टेनिंग मैट्रिक्स इज समेशन ऑफ दिस। ओके, 4.17 minus 4.8, that value is P1. P2 value is this 7.2 minus 6.25. P3 is this. So you will have this matrix P, and similarly matrix K will be this one, 3 of 3 order. और मैं आपको बता ही चुका हूं, if
you will follow the same order of degree of freedom theta b, theta b, theta c in same manner, and in downward also if you will follow the same thing, then the position of stiffness matrix written here, that will be the respective element of the stiffness matrix. Okay, so this summation of this K11, this is 4EI by 5, K12, this is 0, K12, K21, 4EI by 5, this is KT2, summation of these two, KT2, and this is K23, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, what is this, K31, that is 0, and this value is क्या, K32, this one value, और यहाँ पे क्या, this value is K33, 4EI by 5. So after having this, can we have मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या हुई, मैट्रिक्स के इज मैट्रिक्स के इज मैट्रिक्स के कितना, यहां पे बाहर कर लो कुछ, कितना करूं, कितना बाहर करूं, हैं 5 EI LB 5B नहीं, ओके, आपको वैल्यूज पता है सब, आप इसका K इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी, ओके, सेम आंसर यू विल गेट, एंड आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, यू विल फाइंड एंड मोमेंट यूजिंग दिस इक्वेशन, यू विल गेट द एंड मोमेंट, एंड मोमेंट मिल गया, उसके बाद तो सारा काम हो ही गया. ओके, क्लियर, इनवर्स वगैरह निकालना आपको आता ही है.